In this lecture, we will discuss DPP 6. The problems based upon the concentration terms, method of expressing the concentration of solution. So in DPP 6, there were about 18 problems. So I will discuss one by one. So first question, 18 gram glucose are present in 1000 gram of aqueous solution glucose. It is said to be 18 gram means it's 0.1 mole. 18 by 180 is 0.1 mole. So as we have 1000 gram of aqueous solution means glucose. So this is actually when a very small amount of solute, it's very dilute solution. We can take it 1000 gram of solvent. It means your answer is D, 0.1 mole value. Question number 2. Which of the following is correct? Answer is D. All are correct. Now let's see option A. Mole equal to molarity into volume. So what is the definition of molarity? Molarity is equal to number of moles into volume in liter. So when you write mole, it become equal to molarity into volume in liter. And this is also equal to weight by molecular weight. Weight by molecular weight, that is number of moles. So this is also equal to weight upon molecular weight. So that's why option A is correct. Now come to B, millimoles. Millimoles means when you write moles, now we have a millimoles. Millimoles become equal to molarity into volume in ml. When you take the volume in ml, it becomes millimoles. So option B is millimole, molarity into volume in ml equal to weight upon molecular weight into 1000. That's also correct. C option, moles and millimoles of reactants react according to stoichiometric ratio of balanced chemical equation. तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने कर ली है, तो जो मोल्स और मिलीमोल्स है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से ही रिएक्ट करेंगे. जैसे NaCl प्लस NaOH प्लस HCl, तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखोगे तो NaOH का भी एक मोल और HCl का भी एक मोल चाहिए, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाता है डी. क्वेश्चन नंबर 3. Density of water is 1 gram per ml. Concentration of water in moles per liter. If the density of water is 1, it means if we take 1000 ml water, this will become equal to 1000 gram water. So now we have no solute here, only water. So how many moles of water are present? Just find the number of moles. 1000 by 18, your answer will be 55.5. So option D is correct. तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर. तो प्योर वाटर की मोलैरिटी भी यही होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1000 upon 18. Why we take 1000 in case of pure? Because what is molarity? The number of moles present in 1 liter. 1 liter means 1000 ml. So when the density is 1, it becomes 1000 gram. You just find the number of moles, that will be the molarity of pure water. Question number 4. How many gram of NaOH will be needed to prepare 250 ml of 1 molar solution? So simply put the values in the definition. 0.1 molar solution. How many gram WB we want to find out? NaOH is there, so mass is 40 into 1000 upon 250. So ये 4, ये 10, तो WB आपका आ जाएगा 1 ग्राम. Option A. Question number 5. How many gram of glucose should be dissolved to make 1 liter water of 10% weight by volume? So what is the meaning of 10% weight by volume? It means 10 gram in 1000 ml solution. 10 gram glucose in 1000 ml solution. But we want to prepare 1 liter. If we want to prepare 1 liter instead of 1000 ml, 100 ml, we want to prepare 1000 ml, तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड कितना चाहिए? 100 ग्राम. So option C is correct.
क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is 5.85 gram of NaCl dissolved in 90 gram water. तो मोल फ्रैक्शन निकालना है. 6 क्वेश्चन. तो इसमें 5.85 NaCl दिया. NaCl का मास होता है 58.5. इसका मोल्स आगे 0.1. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने हो जाएंगे? वाटर की जो अमाउंट है दैट इज 90 ग्राम गिवन. सो 5 मोल्स. तो मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है NaCl का. तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर. 5 plus 0.1 this is 5.1. So it is 1 by 51 and approximately answer that will be 0.0196. Option D is correct. Question number 7. Molality of 15% weight by volume solution of H2SO4. हमें मोलैलिटी निकालनी है. तो दिया क्या हमें? 15% weight by volume H2SO4 जिसकी डेंसिटी भी दे दी that is 1.1 gram per ml. So what is the meaning of this? 15 gram H2SO4 in 100 gram solution. In 100 gram solution. 100 sorry weight by volume given है तो हम लिखेंगे 100 ml solution. Here is the weight by volume. Now next what do we do? 15 हमें निकालना क्या है? मोलैलिटी. तो मोलैलिटी में क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स that is mass upon molar mass 15 upon 98 into 1000. Now here we want weight of solvent. So what is the weight of solution? Multiply with density, the mass of solution that come out to be 110. Mass of solvent ये आ जाएगा solution का मास माइनस solute का मास 95 ग्राम. तो ये 95 ग्राम यहाँ आ जाएगा. तो 15 डिवाइड बाय ये आपका हो गया 98,000 डिवाइड बाय 95. तो 1.6 जो है आपका आंसर आ जाएगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8. 3 मोलर NaOH solution has density 1.110. तो हमें निकालनी है मोलैरिटी. तो इस केस में क्या करेंगे? 3 मोलर. इसका मीनिंग क्या होगा ये लिखेंगे पहले. 3 moles of NaOH in 1000 gram solvent according to definition. Now what is the mass of solute? 3 into 40 by using mole concept 120 gram. What is the mass of solution now? मास ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल हो जाता है? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट. दोनों को ऐड करोगे 1000 120 1120 ग्राम. अब हमें मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो इससे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे. आपको मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया. डेंसिटी गिवन है 1.110. तो वॉल्यूम कैसे आ जाएगा आपका? वॉल्यूम आ जाएगा 1120 डिवाइड 1.10. तो 1009 वॉल्यूम आ गया. अभी मोलैरिटी में पुट कर देते हैं. नंबर ऑफ मोल्स हैं 3. वॉल्यूम है 1009 इंटू 1000 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.9732. ये आपकी होगी ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 9. एन एक्वा सोल्यूशन. अब 9th क्वेश्चन में क्या है कि मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का जो डायरेक्ट रिलेशन है उसके बेस पे क्वेश्चन है ये. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मींस आप इसको ले लो XA. वाटर इज सॉल्वेंट. तो XB कितना होगा? 0.15 बिकॉज सम ऑफ A and B is 1. Okay, then we have to find the मोलैलिटी. तो मोलैलिटी का एक फार्मूला था XB upon XA into 1000 upon MA.
तो एक्स बी आ गया आपका 0.15, ए आ जाता है 0.85, 1000 डिवाइड बाय 18 सॉल्वेंट। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर है वो 9.8 मोलर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 1000 ग्राम aqueous solution of calcium carbonate contain 10 gram calcium carbonate. Mass of solute 10 gram, mass of solution 1000 gram into 10⁶ ppm के लिए करते हैं हम। तो ppm के लिए करते हैं तो ये आपका आ जाता है 10,000 ppm। तो ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, equal volume of 0.1 molar AgNO3 and 0.2 molar NaCl are mixed. Concentration of nitrate ion in the mixture will be। तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करेंगे, इक्वल वॉल्यूम मीन मान लो दोनों का वॉल्यूम 100 ml है तो मिक्स करेंगे तो डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा तो कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, आधी रह जाएगी। तो नाइट्रेट आयन फर्स्ट में है 0.1, ठीक है, और दूसरे में वो है नहीं। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आप सिर्फ नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन निकालना चाहते हो, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है क्वेश्चन के अंदर। जैसे 11th क्वेश्चन इसमें दिया उसने है 0.1 मोलर AgNO3 प्लस 0.2 मोलर NaCl। तो मिक्सिंग का फॉर्मूला है जो मैंने आपको 2 पेज सेंड किए थे और ये लिखा था कि बिफोर डूइंग दिस असाइनमेंट उनको पढ़ लेना। तो उसमें था ये कि अब देखो इनमें 3 सब बताता हूँ पूरी डिटेल में कि अगर आपको ऐसे 2 सोल्यूशन दे दिए, इनका वॉल्यूम इक्वल है, तो मान लो हम दोनों का वॉल्यूम जो है वो 100 ml ले लेते हैं। वॉल्यूम अलग अलग भी दिया हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर वो कहता है कंसंट्रेशन सिल्वर आयन की बताओ क्या होगी, तो आप सिल्वर आयन इसमें है इसमें नहीं है, तो 0.1 into 100 करेंगे, नीचे आ जाएगा 200, तो सीधा 0.05 आ जाएगी। अगर कंसंट्रेशन कह रहा है कि आप निकालनी है नाइट्रेट आयन की, तो नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन भी ऐसी आ जाएगी 0.1 into 100 by 200, 0.05। अगर वो कह रहा है कि क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो क्लोराइड आयन की आ जाएगी 100 into 0.2 डिवाइड बाय 200, ये आ जाएगी 0.1। तो इस क्वेश्चन में ये नाइट्रेट के आगे मिसिंग है, तो यहाँ पे है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन एंड Cl नेगेटिव आयन इन द मिक्सचर, टोटल दोनों का सम। तो नाइट्रेट और इन दोनों को सम करना है अपने 0.1 0.05, तो आपका आंसर जो है वो 0.15 आएगा, वो आ जाएगा डी। इसमें एक चीज और होती है कि अगर मान लो आपके पास कोई कॉमन आयन आ जाता है तब हम मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। सपोज करो आपके पास 2 क्लोराइड्स हैं, एग्जांपल दे रहा हूं सी, 200 ml ऑफ 0.1 मोलर NaCl है प्लस 300 ml 0.2 मोलर MgCl2 है। तो इस केस में अगर आपको Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है तो सीधा 0.1 into 200 डिवाइड बाय 500 करोगे, सम ऑफ दीज टू, क्योंकि एक ही साइड है। अगर क्लोराइड आयन निकालना है तो भी सेम ही रहेगा, 0.1 into 200 डिवाइड बाय 500। अगर आपने Mg की कंसंट्रेशन निकालनी है 2 पॉजिटिव की तो वो आ जाएगी 300 into 0.2 by 500। हाँ, अब अगर आपने क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो वो दोनों में है, तब आपका वो फॉर्मूला आएगा यहाँ M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3, वो मिक्सिंग वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इस केस में आप क्या करोगे, 200 into 0.1 इसमें है, 300 into 0.2 इसमें, और इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें 2 क्लोराइड आयन है, तब आपकी कंसंट्रेशन आएगी क्लोराइड आयन की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज H2O2। तो इसमें निकालनी है मोलैरिटी। तो उसका जो मास है वो आपको दिया है 5 ग्राम H2O2। H2O2 की जो
मास है वो होता है 34, 5 को आप 34 से डिवाइड करोगे, और वॉल्यूम जो गिवन है वो है आपका 100 ml। मैं सीधा इसको कैलकुलेट कर दूं तो 1.5 जो है वो आंसर बी ऑप्शन आपकी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, all of the water in 0.2 molar solution of NaCl are evaporated and 0.15। अब इसमें क्या देखना है हमें, अगर हमारे पास 0.2 मोलर है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 0.2 moles are present in 1000 ml solution according to definition। ओके, तो 0.15 के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए, सीधा यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 1000 0.2 0.15, तो इसको आ जाएगा 3 4, तो ये 250 इंटू 3 750 ml आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अब मिक्सिंग का है ये, 25 ml 3 molar HNO3 mixed with 75 molar 4 ml nitric acid। If the volume are additive then the molarity of the solution will be। तो इस केस में क्या करेंगे, 25 into 3 प्लस M1V1 75 into 4 दिया। अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया आपका 100, निकालना क्या है M3 into 100, तो यहां से आप M3 की वैल्यू निकाल लो, 3.75 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 150 ग्राम ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालनी है। तो आप इसमें ध्यान देना है, 10 ग्राम सोल्यूट है और 150 ग्राम है वाटर, तो नीचे क्या आ जाएगा 150 प्लस 10 इंटू 100, परसेंटेज आ गया आपके पास मास की डेफिनेशन के हिसाब से, तो इसी 6.25% इसका आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 और दिस DPP 6, तो 16th क्वेश्चन, 100 ml 1 molar NaOH, ये डिल्यूशन के बेस पे है, इस पे हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, M1V1 M2V2, पहले मोलैरिटी 1 है, वॉल्यूम 100 है, दूसरे की मोलैरिटी हमें चाहिए, वॉल्यूम उसने दे दिया 1 लीटर, तो M2 into 1000 कर दो, तो आपके पास M2 की वैल्यू आ जाएगी 0.1, तो ये ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है। 17 क्वेश्चन, glucose solution is 25% by weight of solution means 25 gram in 100 ml। और अगर 100 ml सोल्यूशन है तो सोल्यूट का मास कितना हो गया, फिर 25 है, सॉल्वेंट का हो गया 75, तो परसेंटेज कंसंट्रेशन बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में क्या आ जाएगा फिर आपका 25 आपका मास है सोल्यूट का, 75 हो गया सॉल्वेंट का, बिकॉज परसेंट बाय वेट का मतलब होता है 25% मीन्स 25 ग्राम प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो हमें निकालना है बाय वेट से, तो 33.3 इसका आंसर आ जाता है। 18th क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ सोल्यूशन ऑफ 0.5 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 0.5 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो इसमें पहले हम 0.5 मोलर का मीनिंग लिख लेंगे, इसका मतलब है 0.5 मोल्स, ओके, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ओके, तो 0.15 कितने में होंगे, इससे हम क्या निकालेंगे, सॉल्वेंट का मास, ये आपके पास आ जाएगा 300 ग्राम। अब आगे उसने पूछा है व्हाट मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास, ये जो 300 ग्राम है ये किसका मास आ गया आपके पास, सॉल्वेंट का, अभी हमें सोल्यूशन का सोल्यूट का मास चाहिए, तो 0.15 मोल्स हैं इनटू ग्लूकोज का मास 180 होता है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 27 ग्राम आ गया, ये मास हो गया सोल्यूट का, ये मास हो गया सॉल्वेंट का, तो आंसर क्या आ जाएगा 327 ग्राम, ऑप्शन ए। तो ये थी DPP 6। ऐसे मैंने एक और असाइनमेंट दी थी DPP 7, उसे भी आप सॉल्व करो, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप
कमेंट में मेंशन कर दो, तो फिर मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा अगर उसकी जरूरत पड़ी तो। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन उसमें है, उसमें टोटल 16 क्वेश्चन है, 1-2 रिपीट भी है, तो वो आप